جی میرے پاس آپ کو کال آیا تھا کل رات میں۔ مفتی بدر صاحب بول رہے ہیں کیا؟ مفتی بدر صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں، مفتی بدر صاحب نے بات کر رہا ہوں، عبدالعلیم بات کر رہا ہوں دیوبند سے۔ جی عبدالعلیم بات کر رہا ہوں دیوبند سے۔ اچھا ہاں، میرے کو مطلب میرے کو کچھ مسئلے پہ بات کرنی تھی، سمجھنا تھا یہ بتائیے۔ کہ جیسے ابھی سوشل میڈیا پہ میں چلاتا رہتا ہوں تو اس میں ہر فرقے کے آتے ہیں، جیسے سنی بھی اور یہ دیوبندی بھی بریلوی بھی۔ تو حضرت مطلب تو سب اپنی اپنی الگ الگ باتیں کہتے ہیں، جیسے بریلوی کہتے ہیں، بریلوی کے مولانا سے بھی میری بات ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ کیا نام ہے دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ ہے، کیا گستاخی ہے ہمارے، جبکہ ہمارے یہاں تو مسجد بھی دیوبند کی ہے اور محلہ بھی زیادہ تر دیوبندی ہے، تو کیا ہے یہ چکر کیا ہے؟ کیا چیز میں سمجھا نہیں، دوبارہ بتائیں گے؟ مطلب یہ بریلوی جو الزام لگاتے ہیں کہ دیوبند کے 4 اکابر پہ کفر کا فتویٰ ہے، تو یہ مسئلہ کیا ہے یہ؟ دیوبند کے 4 اکابر کے اوپر فتویٰ ہے؟ ہاں، کون سے اکابر کے اوپر فتویٰ ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب۔ کن کی طرف سے فتویٰ ہے؟ بریلویوں کی طرف سے؟ یہ بولتے ہیں مطلب عرب کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، یہ کتاب ہے نا حرمین شریف سے لگی ہوئی کتاب ہے، کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، اس طرح کا تو کوئی فتویٰ نہیں ہے بھائی، اس طرح کا ڈیبیٹ تو جیسے ابھی جب میری تو ڈیبیٹ تو ہوتی رہتی ہے، میری بھی مطلب ایسے بات ہوتی رہتی ہے، ایک بریلوی عالم سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی بات ہو رہی تھی۔ نہیں، دیکھیے اشرف علی تھانوی اور یہ جو دیوبندی ہے اور بریلوی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بھائی ان میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے دیوبندی اور بریلوی میں، بس فرق اگر جو ہے تو صرف دیوبندی حدیث کے مطابق چلتی ہے، حدیث نبوی پہ چلتی ہے، وہ ایکسٹرا جو حدیث نے جتنا کیا، جو ان کا مسلسل رد و عمل رہا ہے، جو ہمیشہ عمل اس کو کرتے تھے، وہی چیز آج بھی وہی چیز دیوبندی کرتا ہے۔ لیکن بریلوی میں بس اتنی بات ہے کہ جو ایک بار کر لیا انہوں نے، تو اس چیز کو انہوں نے اس چیز کو کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہے یہ۔ اب آپ کو پتا ہوگا جب یہ شب برات میں قبرستان جانے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہتا تو وہ عام طور سے جاتے ہیں، لوگوں کو جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر شب برات کی رات میں ان کی اہلیہ محترمہ سو رہی تھی، اس کے بعد وہ چپکے سے نکلے گھر سے قبرستان کے لیے، تو ان کی اہلیہ اس وقت اٹھ کر دیکھ لی ان کو کہ یہ قبرستان، ان کے پیچھے پیچھے کرتے 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 ان کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ بات وہاں سے عام پہ آ گئی، نہیں تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی کو بھی اس چیز کی خبر تک نہ ملے کہ میں قبرستان گیا تھا۔ تو حضرت پھر تو وہ منع، مطلب جس کو انہوں نے منع کہیں کیا ہے کہ مت جا، میں تو چلا گیا تم لوگ مت جانا، ایسا کچھ انہوں نے تو کہا ہے کہ قبروں پر جانا چاہیے۔ اس میں کیا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھائی ہفتے میں پہلے کیا کہ بھائی ہر دن جایا کرو، تو کیا فرمان ہے کہ نہیں لوگ آگے جا کے زیادہ بزی ہو جائیں گے کام میں، تو چلو ٹھیک ہے 3 دن میں ایک بار جایا کرو، پھر کہ نہیں 3 دن میں بھی زیادہ ہو جائے گا کہ بھائی آدمی مشغول رہے گا کام میں، تو ہفتے میں جایا کرو، ہفتے میں بھی نہیں ہو پا رہا تو مہینے میں ایک بار جاؤ۔ تو یہ چیز ہے نا، آپ جمعہ سے جمعہ چلے جائیے۔ قبرستان تو ایک ایسی چیز ہے، قبرستان ہمیشہ جانا چاہیے، اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں نے اپنا ایک اصول بنا لیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف اسی میں جاتے ہیں، شب برات والے دن ہی جاتے ہیں، قبرستان کو اچھی طریقے سے پھولوں سے سجوا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لائٹ لگوا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت لیکن میری جن آدمی سے بات ہو رہی تھی وہ بول رہے تھے کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پہ تو کوئی فتویٰ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ اگر نہیں چاہتے ہیں تو وہ انہوں نے کر دیا یا وہ گستاخ ہو گئے، اصل صرف ان کی عبارت ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہو رہی تھی، وہ ابھی وہ شاید لائن پہ ہوں گے بھی۔ جی بتائیے۔ ہاں میں لائن پہ ہوں میں۔ یہ مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ جی بول رہے ہیں کہ مطلب ایسا کوئی فتویٰ ہے نہیں، مطلب بس خالی فروعی اطلاعات ہے، جیسے قبرستان پہ جانا نہیں جاتے، بندے نہیں جاتے۔ مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالعلیم ہے۔ اچھا عبدالعلیم مولانا صاحب سنیے، آپ کہہ رہے تھے کہ دیوبندی اور بریلویوں کے بیچ میں
ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, और फ़र्क इतना है कि देवबंदी हदीस के मुताबिक चलते हैं और कुछ बातें जो है बरेलवी लोग बिदअत करते हैं, यही आपका कहना है। जी लेकिन मैंने आपके जो इस वक्त देवबंदियों के सबसे बड़े पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब, उनका मैंने जी बयान सुना। वो कह रहे थे कि बरेलवी और देवबंदियों के बीच में अकायद का इख्तलाफ है, और बरेलवी जो है अकायद के एतबार से शिरक करते हैं, मुशरिक हैं। तो ये उनका कहने का कहना था। मतलब यही तो है ना। देखिए वो लोग कब्र पर जाते हैं, कब्र पर वो चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे उसमें नहीं है ना, हदीस में। हदीस तो में कहीं कौन से से, अब नहीं, साबित है? अभी एक एक बात मैं भी समझना चाहता हूँ, आप आलिम हैं तो आप समझाएं कि शिरक, एक ऐसा शिरक बताए कि जो बरेलवियों में पाए जाते हो शिरक हो, और उस शिरक पर जो है आपसे ज़रा समझूंगा अच्छी तरह, एक क्योंकि मैं मिनट रुक बरेलवियों एक को ही फॉलो, आला हजरत एक को मिनट मैं रुक फॉलो जाइए, एक करता मिनट हूँ। रुक जाइए। जी ये जरा बात कीजिए तो जी। जी बताइए। सलाम अलैकुम। जी ये वालिद साहब है मौलाना समीउद्दीन साहब, जो दारुल उलूम मक्स में पढ़ाते हैं। आप दारुल इनसे उलूम में बात पढ़ाते हैं? कीजिए। दारुल उलूम वक्फ देवबंद में? जी देवबंद में। अच्छा जी। हजरत क्या जी पढ़ाते आप हैं? हजरत दर्स दर्स जलालेन तक निजामिया घंटा है पढ़ाते मिसकात। हैं? जी जी जलालेन मिसकात तक घंटा है। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा, जी मौलाना साहब का नाम क्या है? मौलाना समीउद्दीन साहब। समीउद्दीन साहब। जी अच्छा हजरत, बरेलवी और देवबंदी में क्या फ़र्क है, ज़रा आप फ़र्क वाज़ेह कर दीजिए, क्योंकि हमारे इलाके में देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, और कभी कभी आपस में इख्तलाफात होते रहती हैं। तो ये कि हमारे भाई है मुदस्सिर सिद्दीकी साहब, और मेरा नाम जलालुद्दीन है। आप ज़रा बताएं बरेलवी और देवबंदी में वाज़ेह बुनियादी फ़र्क क्या है? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ हजरत। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, देखिए जहाँ तक बरेलवी देवबंदी का फर्क है, अमली फर्क तो ज्यादा है नहीं, कुछ एतकादी फर्क है। जी कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो उसको जायज समझते हैं, हम उसको नाजायज समझते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हम नाजायज समझते हैं, उसको जायज समझते हैं। जी। तो मसलन ये तो जायज़ नाजायज़ में तो ये एतकादी फ़र्क नहीं हुआ, आपने कहा हजरत के ये एतकादी फ़र्क है, नहीं, तो एक ये अमली तौर पर अमली फ़र्क अमली आपने फर्क है, बताया अभी। अमली फर्क है। जी तो यह है कि मसलन कब्र में चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, हाँ हम इसको बिदअत करार देते हैं। शरीयत इसका कोई सबूत नहीं है, जी लेकिन वो एक हदीस है, उस हदीस को सामने रखते हैं, उसको जायज करा देते हैं, बल्कि औला करा देते हैं। हाँ। सिर्फ एक हदीस को ही से। अच्छा हजरत, जो मुस्तहब का दर्जे तक अगर कोई अमल है, फ़र्ज वाजिब नहीं, मुस्तहब का दर्जे तक कोई अगर अमल है, तो वो तो ज़ईफ़ अहादीस से भी साबित हो सकता है। जो आप फ़राइज़ का दर्जे के दलाइल, आप अगर मुस्तहब अमल में फ़र्ज की दलील मांगेंगे तो वो तो नहीं हो सकता। अगर जो अमल फ़र्ज है वो तो कतई दलील से साबित होना पड़ेगा कि ये अमल फ़र्ज है। वाजिब उससे कम दर्जे की जो दलाइल है उससे वाजिब साबित होगा, उससे कम दर्जे की दलाइल है उससे मुस्तहब और सुन्नत साबित होगा। तो मुस्तहब और सुन्नत साबित करने के लिए कम दर्जे की दलाइल तो काफ़ी है ना? तो आप नहीं, ये बात है, सही है ना? असल बिदअत उसे कहते हैं जो दीन का जूज ना हो और उसको जूज समझकर किया जाए। जी अगर कोई अमली तौर पर करता है लेकिन दीन और शरीयत का जूज समझकर नहीं करता है, जी ये मतलब है। जी किसी मुस्तहब को जूज साबित नहीं कर सकते हैं। जी। समझे ना? नहीं, मैं अगर पूछ रहा हूँ कोई हजरत, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने जो कहा ये एतकादी फ़र्क है,
तो ये एतकाद का ही फर्क पर गुफ्तगू करते हैं, जरा समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अमल का तो अमल में कंप्रोमाइज हो सकती है, जैसा अमल में कुछ कमी बेशी इख्तलाफात तो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली में भी है, और चारों मसलक जो है एतकाद के एतबार से अहले सुन्नत व जमात है। तो अहले सुन्नत के लिए तो एतकाद जिसका दुरुस्त हो वह अहले सुन्नत में शामिल है। अमली फ़र्क में चारों मसलक में अमली फ़र्क है। इसी तरह अगर इस ज़माने में भी कोई अगर दूसरे फ़िरके अगर अमल के एतबार से फ़र्क है, तो बरेली भी देवबंदी में अगर अमल की कुछ फ़र्क है तो उससे तो हो सकता है कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन अकायद में तो कंप्रोमाइज़ होना मुमकिन नहीं। तो ऐसा कोई अकायद में अगर इख्तिलाफ हो तो वो बता दीजिए। आपके बताना, जो चीज शरीयत का जुज ना हो उसको शरीयत बनाकर पेश करना, जो चीज सुन्नत ना हो जी, शरीयत के एतबार से सुन्नत ना हो उसको नबी पर मंसूब करके सुन्नत बनाकर पेश करना, ये असल में बिदात है। तो ऐसा कोई अमल तो बरेलवियों के अंदर हमें नजर नहीं आती, हम तो बरेलवियों में ही रहते हैं। अच्छा, पहले अकायद पर जरा अकायद बता दीजिए, ऐसा कोई कुफर या गुमराहना अकायद या शिरकी अकायद हो वो बता दीजिए। अच्छे बरेलवियों से वास्ता भी नहीं पड़ा है। तो किताबें आपके बड़े अकाबरीन ने तो बरेलवियों के रद में जो किताबें लिखे हैं और इस दौर के जो भी आपके बड़े उलमा रद्द करते हैं, तो वो तो आप तक भी पहुंची होगी। वो तो अमली फर्क जो असल के एतबार से, वो अमलियत के एतबार से बहुत सारे मतलब नबी आपके मिलाद के मौका पर ये एतकाद रखना कि नबी के सलाम तशरीफ लाते हैं जी, ये तो अमल हुआ कि खड़े हो गए, लेकिन ये अकीदा रखना कि नबी के सलाम उस मौका पर तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने का अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं, और बहुत सारे बुजुर्गान दीन के करामात से भी ये बात साबित है कि वफ़ात के बाद जिस्मानियत के साथ कब्र से तशरीफ लाए, और जहाँ जिक्र खैर होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर, आपके मैं किताब पढ़ा, किताब का नाम है तहज़ीरुन नास। उसके अंदर लिखा हुआ है, कासिम नानोतवी साहब लिखे हैं, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इसके बारे में लिखे हैं कि औला बमाना अकरब, यानी सबसे ज्यादा करीब। तो बिल मुमिनीना, औला बिल मुमिनीना यानी मोमिनीन के सबसे ज्यादा करीब। तो हर मोमिन से अगर नबी सबसे ज्यादा करीब है रूहानी एतबार से, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे एतबार से, हमारे रूहानी एतबार से करीब ही है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं, ऐसा अकीदा है बरेलवियों का। ये नहीं कि हर जलसे में तशरीफ लाना लाजिम है, ऐसा अकीदा नहीं है जो आप कह रहे हैं। और जो अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं, यह अकीदा तो आपका भी है। तशरीफ ला सकते हैं, हाँ, लेकिन जिस्म वाहिद आने वाहिद के अंदर मकामे वाहिद में तो हाजिर हो सकते हैं, लेकिन जिस्म वाहिद आने वाहिद के अंदर मकामे मुतादला के अंदर नहीं जा सकते। ये सिर्फ सात बारी की खूबसूरत है, अपनी कुदरत के एतबार से सारे आलम को मुट्ठी में कर रखी है। हाँ, ये तो आपने बहस जो अभी शुरू किया है, इसी बहस को बराहीन कातिया में, बराहीन कातिया खलील अहमद अम्बेटी साहब बराहीन कातिया में इल्म मुहीत के बारे में लिखे हैं। यानी आने वाहिद में जो आप कह रहे हैं, आने वाहिद में दुनिया के हर चप्पा चप्पा, करोड़ों जगह बैक वक्त देखना और अपने इल्म में होना, ये इल्म मुहीत है। और इल्म मुहीत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित नहीं है, ये बराहीन कातिया में लिखे हुए हैं। और इसी बराहीन कातिया में इस पे बहस हुई है कि इल्म मुहीत तो मलकुल मौत को हासिल है, शैतान को भी हासिल है, कि करोड़ों जगह एक वक्त में शैतान जो है गुमराह कर रहा है, गुमराही बहका रहा है, वसवसा दे रहा है।
तो करोड़ों जगह में शैतान के इल्म में करोड़ों जगह है, और मलकुल मौत के भी करोड़ों जगह, जितने इंसान दुनिया में है सबकी रोजी मलकुल मौत को पता है कि इसकी रोजी खत्म हो गई, अभी इसको रूह कब्ज करने का वक्त आ गया है। रूह किस घड़ी में किसका रूह कब्ज करना है, सबके रूह मलकुल मौत के मुट्ठी में है। और मलकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हर इंसान के मौत के वक्त जानते हैं, और जहां मौत होते हैं हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करते हैं। तो इससे मलक जो आप कह रहे हैं आने वाहिद में करोड़ों जगह इल्म में होना, तो ये खुदा ताला की सिफात खासा नहीं है। ये सिफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने दिया है, और मलकुल मौत को भी है, और शैतान मलऊन को भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को, जो मेराज का वाक़या है, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। ये हदीस के शारहीन हदीस ने, मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब खास में जब पहुँचे, अल्लाह ताला ने पूछा कि मलाए आला के फरिश्ते किस बारे में बहस कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार मुझे इसका इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने दस्ते कुदरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पर दोनों कंधे के बीच में रखा, जिसकी हलावत जिस्म के हर हिस्से में महसूस होने लगी। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मैंने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जान लिया। जब नबी ने जान लिया तो नबी के इल्म उसके बाद कम नहीं हुआ, उसके बाद हर दिन नबी के इल्म में इजाफा ही होता है। तो आप बताइए नबी के इल्म से कौन सी चीज़ इस वक्त छुपे हुए हैं। हुजूर ने मेराज में ही फरमाया, फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। तो इससे तो मलकुल मौत से भी ज़्यादा और तमाम फरिश्तों से ज़्यादा, तमाम अंबिया से ज़्यादा हुजूर के इल्म साबित होते हैं। देखिए, नबी के असलाम के इल्म के इजाफा के कोई इनकार नहीं करता, लेकिन मसले की सुनिए एक बात, इल्म की दो किस्में हैं, एक है इल्म बिलवास्ता, एक है बिलावास्ता। जी, अगर बिलावास्ता इल्म देखा जाए तो बहुत सारे गायब के इल्म तो दुनिया के सभी लोगों को हासिल है, जो हदीस कुरान व पढ़ कर हासिल कर सके। लेकिन नबी को जो इल्म हासिल है बिलवास्ता है, बिलावास्ता नहीं है। और बिलवास्ता ये इल्म हासिल, उसको इल्म मुहित भी नहीं कहा जा सकता, ना इल्म गायब कहा जा सकता है। वो तो समझिए कि खबरें गायब है। अल्लाह ताला ने आपको गायब की खबर दी है, इल्म गायब नहीं है, ना इल्म मोहित है। वो तो समझते कि खबरें गायब। अगर इल्म गायब मोहित हो जाता तो कुरान भी फरमाता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। नबी साहब खुद ही इनकार करते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो जंग बदर में क्यों जाते? अगर इल्म होता तो फिर जंग उहद के अंदर वो इंसान शिकस्ती क्यों होती? इसलिए नबी को इल्म नहीं है, कोई इल्म मोहित ही नहीं। लेकिन आपको जो भी इल्म किया जाएगा वो इल्म बिलवास्ता है, इल्म बिलावास्ता नहीं। तो आपकी किताब में जो आपके अकाबिरीन ने लिखे हैं, उल्लिमतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन और आखिरीन के उलूम दिए गए हैं। तो अव्वलीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में ज़ाहिरी हयात में दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जितने भी इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जितने भी दुनिया में जितने भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, सबका उलूम इकट्ठा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं। और बाद में जितने दुनिया में क़यामत तक आएंगे सबको दिए गए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद मिंबर पे तशरीफ़ रखे और ज़ोहर तक बयान फरमाया, ज़ोहर के बाद फिर मिंबर पे तशरीफ़ रखे, असर तक बयान फरमाया, फिर असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक, यानी फजर से लेकर उस दिन इशा तक सारे दिन हुजूर ने बयान फरमाया। और दुनिया में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है सब कुछ हुजूर ने बयान फरमाया क़यामत तक। तो सब कुछ हुजूर के इल्म में है, इसलिए तो सब कुछ हुजूर ने बयान फरमाया है। और आपने जो कहा इल्म मुहित, हजरत इल्म मुहित जो आपकी किताब में बराहीन कातिया में, मैं आपको इसका फोटो भी भेज सकता हूँ, बराहीन कातिया में 122 नंबर पेज में जो शैतान को हासिल है
और मलकुल मौत को हासिल है उसको इल्म मुहित कहा गया, और आप कह रहे हैं इल्म मुहित नहीं कहा जा सकता। तो आपके अकाबिरीन से आपका ही टकराव हो रहा है हजरत। सर अकादमी किताब में क्या लिखा है उसका मफहूम कैसे देखा जाएगा कि एक ही हाँ, लफ्ज बराहीने कातिया। एक बात सुनिए, जी एक फरमाइए। ही जुमला है, लिखने वाले का मफहूम कुछ होता है, समझने वाले कुछ और मफहूम समझते हैं, कुछ मफहूम प्लस फिर भी हो जाता है। नबी के रसूल फरमान मुझे दिया गया, ये नहीं कि मुझे इल्म है, बल्कि इल्म इताई है। इल्मी पक्षी नहीं नबी रसूल को बिला वास्ता नबी को इल्म हो। अल्लाह का जो इल्म है सारा बिला वास्ता है। नबी ने ईता का लफ्ज लेकर मुझे अव्वलीन आखिरीन का इल्म दे दिया गया। देने का मतलब है कि अल्लाह दिया, आपके साथ ही इल्म नहीं हो। असल जो गैबी इल्म से कहते हैं साथी हो, इताई ना हो। अल्लाह के इल्म पर इताई के इतलाक नहीं किया जाएगा। अच्छा हजरत, जो मलकुल मौत को हासिल है वो बिल वास्ता है या बिला वास्ता है? किसी को भी अल्लाह के अलावा किसी को भी इल्म बिला वास्ता नहीं है। तो जब मलकुल मौत को भी बिल वास्ता है उसको भी आप इल्म मुहित कह रहे हैं। आपकी किताब में मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिए। ये मैं देख के पढ़ के सुना रहा हूँ। ये अल हासिल गौर करना चाहिए। ये किताब का नाम है बराहीने कातिया। लिखने वाले रशीद अहमद गंगोही साहब लिखे हैं, और इसके पेज नंबर 122 है। मैं वहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ। अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिला दलील महज क़यास फासिदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान और मलकुल मौत को ये सिफात नस्स क़तई से साबित हुई, और फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सा नस्स क़तई है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिरक साबित किया जाए। ये इबारत है 122 नंबर पेज का। इससे ये साबित होता है कि शैतान को जो हासिल है उसे आप इल्म मुहित मान रहे हैं, और मलकुल मौत को भी हासिल है उसको भी आप इल्म मुहित मान रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में भी सारा उलूम दिया गया, और हुजूर ने मिंबर पे बैठकर बयान फरमाए। सहाबा इकराम रिवायत करते हैं कि क़यामत तक इब्तिदाए खल्क से लेकर बदाइल खल्क हदीस है, बुखारी शरीफ में है कि इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक, जहन्नम में जाने तक के हर वाक़या हुजूर ने बयान फरमाया। तो जब क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हुआ है, सब कुछ बयान कर दिया, तो उसको आप इल्म मुहित नहीं मान रहे और कह रहे बिल वास्ता को इल्म मुहित नहीं कहते। मोहित का मसला नहीं, मसला है इल्म गैब नबी को हासिल है या नहीं है। इल्म गैब उसे कहते हैं जो बेला वास्ता हो और कुल्ली हो। ये दोनों शर्त हैं, कुल्ली भी हो और बेला वास्ता हो। नबी के सलाम को गैब की खबर ना तो कुल्ली है और न बेला वास्ता है, क्योंकि आपने फरमाया कि मुझे दिया गया, मानो कि बेला वास्ता नहीं बिल वास्ता है। ये दूसरी बात है कि बहुत सारे उमूर ऐसे जो नबी के रसूल को उसका पता भी नहीं था, वरना जंगे बदर में जो जंग उहुद में जाकर शिकस्त ना करते, क्योंकि जंगे हुनैन में मामूली बात की बिना पर इतना भी शिकस्त हो गई और 70 लोग हमारे शहीद हो गए। अगर आपको पता होता तो इस तरह का मसला पेश नहीं आता। इसीलिए कहते हैं नबी को जो भी इल्म दिया गया है वो इल्म इताई है, इल्म गैब नहीं। दूसरी बात है कि आपको कुल इल्म नहीं दिया गया, वो जुज़वी तो बहुत सारे पुशीला खबर आपको मालूम है। आपने कह दिया कि मुझे दिया गया, अव्वलिन आखिरीन का इल्म दे दिया गया, आपको दिया गया है, साथ ही इल्म आपका नहीं है। और किसी पर गैब की खबर, इल्म गैब सादिक आने के लिए इल्म साथी होना जरूरी है। इल्म आती का नाम, इल्म इताई का नाम इल्म गैब नहीं है। जी हजरत, आप जो कह रहे हैं ये आपके किताबों के भी खिलाफ हो रहा है। आपके किताब में एक किताब है इरशादुल मुफ्तियीन, इसके लिखने वाले हैं हमीदुल्लाह खान।
मुफ्ती हमीदुल्लाह खान साहब, आपके देवबंद के एक बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं। तो उन्होंने जो लिखा है कि अंबिया इकराम को इल्म गैब बज़रिए वही हासिल है, और औलिया इकराम को इल्म गैब बज़रिए करामत कश्फ करामत हासिल है। तो इल्म गैब जो है औलिया के लिए भी मानते हैं, अंबिया के लिए भी मानते हैं। और तफसीर मारिफुल कुरान है, आपके देवबंदी मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है तफसीर मारिफुल कुरान, उसका भी मेरे पास फोटो है। उसमें लिखे हैं कि यह कहना खिलाफ अदब है कि अंबिया को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे उमूर मुगीबात का उलूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, अल्लाह ताला ने अता किया है। तो मैं आपको एक ही बात मैंने कह दिया कि नबी को तो गैब की खबरें हैं, लेकिन वो इताई है, जाती नहीं है। हर जगह ये कल जाने आपको तो जाति तो कोई नहीं मानता, आप बगैर बिला वजह जाति का बार बार जाति का कैद लगा रहे हैं। हालांकि इल्म गैब अल्लाह ने, आप जो कह रहे हैं इल्म गैब उसे कहते हैं जो कुल्ली हो और जाति हो। ये शर्त कहीं भी किसी भी डिक्शनरी में इसका शर्त नहीं है, बल्कि लुगात है, लुगात अल-मुंजिद है गायब का, उसमें माना ये लिखा हुआ है गाबा अनिन नास, यानी आवाम के नज़र से जो गायब है उसे गायब कहा जाएगा। चाहे खवास को हासिल हो तो भी वो गायब ही रहेगा, क्यों? हासिल होने के बाद वो गायब नहीं रहता, ऐसा बिल्कुल शर्त किसी भी डिक्शनरी में किसी भी लुगात में नहीं है। किसी तफसीरी की किताब में या मिशकात की किसी शरह मैंने उसको पढ़ के बताया, मेरे साथ अपनी राय है इसमें। मैं इतना बड़ा आलिम नहीं जो जाती राय पेश करूं। आप तो शेखुल हदीस हैं, मैं तो छोटा मौलवी हूँ। बस मैं तो बच्चों को मैं नाजरा पढ़ाता हूँ, मैं बरेलवियों के मदरसे में मैं नाजरा पढ़ाता हूँ, मैं कोई शेखुल हदीस नहीं हूँ। आप शेखुल हदीस हैं और आपकी सलाहियत बेशक ज्यादा है। तो आप हदीस के शरह से किसी भी हदीस में ऐसा इनकार है कि नबी को इल्म गायब नहीं था, ये तो आप साबित नहीं कर सकते। और हदीस में ये बात मौजूद है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और यह हदीस बहुत सारे सहाबा ने रिवायत किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक बयान फरमाया। और बुखारी शरीफ की एक हदीस में ये भी है कि मा अख्फा अलैया रुकूउकुम अला खुशूउकुम, तुम्हारा रुकू भी मैं जानता हूँ, तुम्हारा खुशू भी मैं जानता हूँ। तो खुशू क्या है? ये तो गायब की चीज है, दिल की कैफियत का नाम है खुशू। खुशू हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे रुकू भी मुझसे छुपे हुए नहीं है, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपे हुए नहीं है। आप बताइए मौलाना साहब, खुशू तो गायब की चीज का नाम है। हजरत अभी थोड़ी देर में फोन कीजिएगा, नमाज का वक्त हो गया। अच्छा, नमाज का वक्त हो गया है। चलिए, नमाज के बाद बहुत सारी बातें हुई है, बहुत अच्छा, आप अच्छे अंदाज में गुफ्तगू किए हैं। आप कौन सी जगह से हैं? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश मदनपल्ली। नमाज हो गई? असर की नमाज का वक्त हो गया, अभी जाना है नमाज पढ़ने, मैं भी जाऊंगा। हाँ, हमारे यहाँ पे भी अजान हो चुकी है।